Hello 7th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new chapter 3, exercise 3.8. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Chapter 3, decimal. Decimal means number expressed in decimal form or called decimal numbers or simply decimals. आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं. नाउ डेसिमल हैज़ टू पार्ट. डेसिमल के टू पार्ट्स होते हैं. जो डेसिमल में जो हम डॉट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. ओके, जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम होल पार्ट बोलते हैं, और जो डेसिमल के राइट साइड में होता है उनको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन 443.365 में जो 443 है वो होल पार्ट है एंड 365 इज द डेसिमल पार्ट. ओके, नाउ डेसिमल प्लेसेस द नंबर्स ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर गिवन द number of decimal places. For example, 11.13 has 2 decimal places while 3.126 has 3 decimal places. Okay, now like decimals, decimals having same number of decimal places are called like decimals. See the example, 0.4 and 10.2 are like decimals with 1 decimal place. Okay, now unlike decimals, decimals having different numbers of decimal places are called unlike decimals. See the example, 4.18 and 9.1. So first नंबर में हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और सेकंड नंबर में हमारे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. सो these are unlike decimals. Unlike decimals can be converted into like decimals by placing the required number of 0 to the extreme right of the decimal part. जो हमारे अनलाइक डेसिमल्स होते हैं उनको लाइक डेसिमल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम जीरोज़ को पुट करते हैं डेसिमल के राइट साइड पे. ओके, जितनी हमें रिक्वायर्ड है. सो एग्जांपल आप देखेंगे, अनलाइक डेसिमल्स आर 0.3, 1.41 एंड 1.913. सो यहाँ पर हाईएस्ट जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है वो 3 हैं. ओके, नाउ हमें तीनों नंबर हैं उनकी डिजिट्स डेसिमल के बाद 3 बनानी है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.3 को हम क्या लिख देंगे, 0.300. ओके, नाउ 1.41 को लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.410 हम ऐड कर देंगे और ये हमारा सेम नंबर रहेगा 1.913. ओके, सिंस मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस इन अनलाइक डेसिमल्स आर 3, so we have converted each unlike decimal into like decimal with 3 decimal places. Okay, now next, expanded form a decimal. अब डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे. सो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ऑब्जर्व करो आप इसको. सो यहाँ पर 365 फिर हमारा डेसिमल पॉइंट है. नाउ डेसिमल के बाद हमारे 1 to 9 नंबर्स हैं. सो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, 300 + 60 + 5 + 1/10. बेटा जो डेसिमल के बाद हमारे जो नंबर्स होंगे उनको हम 10, 100 एंड 1000 की फॉर्म में लिखेंगे. सो 1/10 मीन्स 1/10. सो 2/100 मीन्स 2/100 एंड 9/1000 मीन्स 9/1000. ओके, now compare decimals. To compare two decimal numbers, first make sure that the decimal to be compared are like decimals. If not, then convert them into like decimals and compare them as usually as in whole numbers. Okay, now first we compare the whole parts of the decimal numbers. The decimal having the greater whole part is greater. If the whole part of two decimals are equal, then compare their digits in the 10th place. The decimal having greater digit in the 10th place is greater if the 10th digit of the two decimals are also equal. Then compare their digit in 100th place and so on. Okay, see the example, which is greater. So यहाँ पर हमें कंपेयर करना है. सो ए पार्ट आप देखेंगे 3.07 and 3.46. In 3.07 and 3.46 the whole parts are equal. Okay, but in 3.46 the digit in 10th place is greater than that of 3.07. So therefore 3.07 is
लेस देन 3.46, ओके, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 3.46 इज ग्रेटर देन 3.07। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे अनलाइक डेसिमल्स हैं, सो फर्स्टली इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन कंपेयर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जिंग ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। नाउ in this part, to convert a decimal numbers into a fraction, remove the decimal point and take the number as the numerator. Take the denominator as 1 followed by as many zeros as there are decimal places in the given decimal number. Then reduce the fraction to its simplest form. Okay, now see the example. Express the following decimals into fractions. सो ए पार्ट इज़ 0.036। सो यहाँ पर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो उसको हम कैसे करेंगे, आवर नंबर इज़ 36, ओके, हम न्यूमिनेटर में अपना नंबर लिख देंगे, अपना होल नंबर बना देंगे इसको, एंड अपॉन करेंगे बेटा, यहाँ पर डेसिमल की जगह हम 1 लगा देंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, एक 0 है, एक 3 है एंड 6 है, मीन्स 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ओके। नाउ देन कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हम कट करके हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा 9/250, ओके। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 8.125 है। सो सिंपली हम न्यूमिनेटर में हमारा अपना नंबर लिख देंगे 8125 मीन्स 8125। देन हम अपॉन करेंगे और डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल की जगह हम 1 पुट करेंगे एंड डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, सो हम 3 डिजिट लगा देंगे। नाउ चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सो 65/8। नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म, सो 8:1/8, ओके। नाउ कन्वर्जिंग ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब ये इसका अपोजिट है। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट 10, 100, 1000 and so on, then convert it into an equivalent fraction with the denominator 10, 100, 1000 and so on. Second, write its numerator and put a decimal point. First point is after one place from right towards left if the denominator is 10, okay. Now second point, after 2 places from right towards left if the denominator is 100. Now third point, after 3 places from right towards left if the denominator is 1000 and so on, okay. If the numerator does not have enough digits, then put the required number of zeros to the left of the numerator. See the example, convert the following fraction into decimal. So a part is 3/25. So here denominator is 25. 25 को हम 10, 100, 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आवर डिनोमिनेटर इज 100 एंड हमारा जो न्यूमिनेटर है 3 उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 12/100। नाउ आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 100 है। सो आवर आंसर इज 0.12, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द डेसिमल्स, कन्वर्ट द गिविंग डेसिमल इनटू like decimals. Write the decimals in columns by keeping the decimal point of all the decimals in same column and digit of the same place in the same column. Then add or subtract in a usual way as we add or subtract in whole numbers. Finally put the decimal point in the sum or difference directly below the other decimal points. See the example, add these numbers. So firstly convert into like decimals. So 36.400, 273.060, 9.397, 68.000, ओके। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए एंड होल नंबर के नीचे हमारा होल नंबर, एंड डेसिमल के जो हमारे राइट साइड पे पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ उनके नीचे ही लिखना है, ओके। नाउ सिंपली हम इनको प्लस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सब्ट्रैक्ट का। सो सिमिलरली हम फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे इनको लाइक डेसिमल में, देन इनको डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल पुट करना है
और होल नंबर के नीचे होल नंबर, और डेसिमल के राइट साइड में जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको उनके नीचे रख के सबट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज 3.a स्टार्ट. ए पार्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, 15 रुपीज़ 5 पैसे expressed in decimal is. So in this question we write 15 rupees same and 50 पैसे को हम कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में. सो 5/100 इक्वल टू 15 प्लस 0.05 इक्वल टू 15.05 इज आवर आंसर. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी इन योर बुक द वैल्यू ऑफ 0.3 प्लस 0.09 इज. सो इन दिस क्वेश्चन हम पहले इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में. ओके, यहाँ पर देखेंगे आप 0.30 हम लगाएंगे बेटा. 0 आपको लगाना है इसके पीछे. देन प्लस 0.09. नाउ प्लस करेंगे सो आवर आंसर इज 0.39. ओके, नाउ डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, बाय हाउ मेनी किलोग्राम इज 850 ग्राम ग्रेटर देन 2,55,800 मिलीग्राम. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी कन्वर्ट 850 को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. सो 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 0.85 किलोग्राम. ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 2,55,800, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो 10 लाख से डिवाइड कर देंगे. सो 0.2558 kg. ओके, नाउ माइनस करेंगे. So our answer is 0.5942 kilogram. So C option is correct. Now question number 4, the decimal number that should be subtract from 0.2 to get 0.04 is. So इसको हम माइनस करेंगे. So our answer is 0.16. So B option is correct. Now question number 5, compare, आपको कंपेयर करने हैं बोथ. सो फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे 15.7 माइनस 6.4. माइनस करने पर हमारा आंसर आ गया 9.3. ओके, नाउ राइट साइड 3.28 प्लस 5.91. सो प्लस करेंगे. आवर आंसर इज 9.19. सो कौन सा बड़ा है इसमें? 9.3. ओके, सो 9.3 इज ग्रेटर देन 9.19. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Now start B part. Solve the following. First question is write the expanded form of the following decimals. Now A part is 121.45. So इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है बेटा उसको हम सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 1. ओके, नाउ डेसिमल के बाद हमारे जो पॉइंट्स होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, 4/10. जो हमारा 10th प्लेस पे होगा उसको हम 10 लिखेंगे. जो हमारा 100 प्लेस पे होगा उसको हम अपॉन 100 लिखेंगे. सो 4/10 प्लस 5/100. नाउ बी पार्ट 400.029. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 400 इज सेम प्लस यहाँ पर 0 को हम शो नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2. सो 2/100 then plus 9/1000. Okay, now similarly you have to solve other part of this question. See the example. Convert the following fraction into decimal. So A part is 3/25. So here denominator is 25. 25 को हम 10, 100, 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर डिनोमिनेटर इज 100 एंड हमारा जो न्यूमिनेटर है 3 उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर फ्रैक्शन इज 12/100. नाउ आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 100 है. सो आवर आंसर इज 0.12. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. To add or subtract the decimals, convert the giving decimal into like decimals. Write the decimals in columns by keeping the decimal. See the example. Add these numbers. So firstly convert into like decimals. So 36.400, 273.060, 9.397, 68.000. ओके, यहाँ पर हमें
इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए एंड होल नंबर के नीचे हमारा होल नंबर, एंड डेसिमल के जो हमारे राइट साइड पे पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ उनके नीचे ही लिखना है। ओके, नाउ सिंपली हम इनको प्लस कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ए पार्ट इज 0.9, सो हेयर आवर न्यूमिनेटर इज 9 एंड डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह हम 1 लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो 10 हम पुट कर देंगे। सो आवर जो हमारा फ्रैक्शन हो गया बेटा वो हो गया 9/10। ओके, नाउ बी पार्ट 0.54, सो न्यूमिनेटर इज 54 अपॉन डेसिमल की जगह हम 1 लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है हमारी, सो 20 हम लगा देंगे। नाउ चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सो कट करके हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन 27/50। सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सी एंड डी पार्ट। नाउ स्टार्ट बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। नाउ ए पार्ट इज 121.45, सो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है बेटा उसको हम सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 100 + 20 + 1। ओके, नाउ डेसिमल के बाद हमारे जो पॉइंट्स होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, 4/10। जो हमारा 10th प्लेस पे होगा उसको हम 10 लिखेंगे, जो हमारा 100th प्लेस पे होगा उसको हम अपॉन 100 लिखेंगे। सो 4/10 + 5/100। नाउ बी पार्ट 400.029, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 400 इज सेम प्लस यहाँ पर 0 को हम शो नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2, सो 2/100 देन प्लस 9/1000। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व other part of this question. Now question number 7, express the following as rupees using decimal. A part is 7 पैसे, so 7 पैसे को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, so 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़, so 7 पैसे इक्वल टू 7/100 रुपीज़। so change into डेसिमल फॉर्म, so 100 है हमारा डिनोमिनेटर, so हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, सो आवर आंसर इज 0.07। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 26 रुपीज़ 3 पैसे, सो 26 इज सेम एंड 3 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में, सो 3/100। नाउ 26 प्लस 0.03, सो आवर आंसर इज ₹26.03। सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व other parts of this question. See the example, add these numbers. So firstly convert into like decimals. So 36.400, 273.060, 9.397, 68.000। ओके, यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए एंड होल नंबर के नीचे हमारा होल नंबर, एंड डेसिमल के जो हमारे राइट साइड पे पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ उनके नीचे ही लिखना है। ओके, नाउ सिंपली हम इनको प्लस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सब्ट्रैक्ट का। सो सिमिलरली हम फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे इनको लाइक डेसिमल में, देन इनको डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल पुट करना है और होल नंबर के नीचे होल नंबर, और डेसिमल के राइट साइड में जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको उनके नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट। ए पार्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, 15 रुपीज़ 5 पैसे एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल इज।
Now question number 4, convert each of the following decimal into a fraction in its simplest form. So a part is 0.9. So here our numerator is 9 and denominator में हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह हम 1 लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो 10 हम पुट कर देंगे. सो आवर जो हमारा फ्रैक्शन हो गया बेटा वो हो गया 9/10. ओके, नाउ बी पार्ट 0.54. सो न्यूमिनेटर इज 54 अपॉन डेसिमल की जगह हम 1 लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है हमारी, सो 20 हम लगा देंगे. नाउ चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सो कट करके हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन 27/50. सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सी एंड डी पार्ट. नाउ स्टार्ट बी पार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स. नाउ ए पार्ट इज 121.45. सो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है बेटा उसको हम सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 100 + 20 + 1. ओके, नाउ डेसिमल के बाद हमारे जो पॉइंट्स होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, 4/10. जो हमारा 10th प्लेस पे होगा उसको हम 10 लिखेंगे, जो हमारा 100th प्लेस पे होगा उसको हम अपॉन 100 लिखेंगे. सो 4/10 + 5/100. नाउ बी पार्ट 400.029. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 400 इज सेम प्लस यहाँ पर 0 को हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल. ए पार्ट इज 7 पैसे. सो 7 पैसे को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़. सो 7 पैसे इक्वल टू 7/100 रुपीज़. सो चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म. सो 100 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो हमें ए पार्ट दिया गया है, उसमें हमें बेटा सेम कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. सो वी हैव 100.070, 5.192 एंड 4.120. सो फर्स्टली हम प्लस करेंगे 100.070 प्लस 5.192. सो आवर आंसर इज 105.262. नाउ माइनस करेंगे 4.120. सो आवर आंसर इज 101.142. ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 4, convert each of the following decimal into a fraction in its simplest form. So a part is 0.9. So here our numerator is 9 and denominator में हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह हम 1 लगाएंगे एंड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो 10 हम पुट कर देंगे. सो आवर जो हमारा फ्रैक्शन हो गया बेटा वो हो गया 9/10. ओके, नाउ बी पार्ट 0.54. सो now question number 15, see in your book how much less is 16 kilometer from 38.35 kilometer. So let the x kilometer is less, 16 plus x equal to 38.35. okay, now x की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस करके. सो आवर x इक्वल टू 22.35 किलोमीटर. now question number 16, see in your book what should we subtract from 8.1 to get 0.813. so let the required number be x. so 8.100 minus x equal to 0.813. now x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे. सो आवर आंसर इज 7.287. therefore 7.287 is subtracted from 8.1 to get 0.813. now question number 17, see in your book Priya purchased grocery for rupees 200.50 paise from a store. The cashier gave her rupees 90.25 in return from rupees 300 paid. She shouted back at the cashier, why did she do so? वो उसके ऊपर क्यों चिल्लाई. सो फर्स्टली प्रिया परचेज ग्रोसरी इक्वल टू कितने में उसने परचेज करी, रुपीज़ 200.50 पैसे. अमाउंट पेड टू कैशियर, कितने रुपए उसने कैशियर को दिए, 300. नाउ कैशियर शुड गिव हर 300 माइनस 200
99.50 पैसे हम माइनस करेंगे। सो कितने रुपए उसको देने चाहिए? 99.50, बट उसने कितने रुपए दिए हैं? 90.25। सो कितने उसको कम दिए हैं? सो माइनस करेंगे। सो 9.25 रुपीज़ उसको कम दिए हैं। हैंस ही गेव हर रुपीज़ 9.25 लेस, सो शी शाउटेड। Now question number 7, express the following as rupees using decimal. A part is 7 पैसे। So 7 पैसे को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? So 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज़। So 7 पैसे इक्वल टू 7 अपॉन 100 रुपीज़। So चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। So 100 है हमारा डिनोमिनेटर। So हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। सो आवर आंसर इज 0.07। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 26 रुपीज़ 3 पैसे। सो 26 इज सेम एंड 3 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में। सो 3 अपॉन 100। नाउ 26 प्लस 0.03। सो आवर आंसर इज रुपीज़ 26.03। सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 20. See in your book, Shama brought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla brought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who brought more fruits? Okay. So total apples brought by Shama. So 5 kg plus 300 gram को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। सो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 प्लस 0.3 किलोग्राम इक्वल टू 5.3 किलोग्राम। ओके। नाउ टोटल मैंगोज ब्रोड बाय श्यामा इक्वल टू 3 किलोग्राम प्लस 250 अपॉन 1000। सो 3 प्लस 0.25 किलोग्राम इक्वल टू 3.25 किलोग्राम। नाउ टोटल फ्रूट्स ब्रोड बाय श्यामा। सो एप्पल्स एंड मैंगोज को हम प्लस कर देंगे। सो आवर आंसर इज 8.55 kg। नाउ सरला का हम फाइंड करेंगे। सो टोटल ऑरेंजेस ब्रोड बाय सरला 4 kg प्लस 800 अपॉन 1000 kg। सो 4 प्लस 0.8 kg इक्वल टू 4.8 किलोग्राम। नाउ टोटल बनानास ब्रोड बाय सरला 4 kg प्लस 150 अपॉन 1000 kg। सो 4 प्लस 0.15 kg इक्वल टू 4.15 kg। नाउ टोटल फ्रूट बाय सरला हम इनको प्लस कर देंगे 4.80 प्लस 4.15। सो आंसर इज 8.95 kg। सो किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं? हैंस सरला ब्रोट मोर फ्रूट्स देन श्यामा बिकॉज सरला ने 8.95 kg खरीदे हैं और श्यामा ने 8.55 kg। ओके। नाउ चिल्ड्रन योर एक्सरसाइज इज ओवर। योर होमवर्क इज दैट you have to write it in your notebook. Thank you students.